Hello everyone, good evening. Welcome to NEET PG Life Daily. Myself, Dr. Apurva Mittal, and today we'll be discussing yet another important of anesthesia, that is anesthesia machine. And in anesthesia machine, we'll be discussing today only about the cylinders basically. So welcome to Unacademy. Unacademy is India's leading online platform for various courses, and by getting Unacademy subscription you'll be able to avail the live classes in which you'll be able to interact with the top educators, and we'll be having daily test series and analysis in which you can evaluate the progress, and we'll be having a live doubt clearing session, so you can ask the doubts pertaining to that subject to any of the educators through this subscription. Okay, this subscription we have either a 12 months or a 24 months course, and if you apply the code that is Apurva Live, APOORVA Live, you can get 10% discount on the same. Okay, now coming to the topic anesthesia machine. Why the anesthesia machine is important for an anesthesiologist? What is the function of the machine, and what are the various components of the machine which is required for us? That I'll discuss in the subsequent lectures. So basically, what is the machine? Machine is the one which reduces the workload of the man, है ना, ये अपना काम इजी कर देती है. अब एनेस्थीसिया मशीन में क्या होता है, एट मोस्ट बेसिक लेवल पे अगर मैं बताऊं, सो द एनेस्थीसियोलॉजिस्ट uses the anesthesia machine to control the patient's ventilation, है ना. If the patient is under general anesthesia, है ना, and the breathing of the patient is in the anesthesiologist's hands. So, to control the patient's ventilation, the anesthesiologist will be using the anesthesia machine. It will be using it to deliver the oxygen and also to administer the inhalational anesthetics. So basically the whole ventilation of the patient is in the anesthesiologist's hands, and the anesthesiologist is able to do that work more easily because of this machine, which is the anesthesia machine. So it is a very important part of an anesthesiologist. Okay. Now, because of all these important functions which the anesthesia machine is doing, so therefore the proper functioning of anesthesia machine is crucial for patient safety. अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई एनेस्थीसिया मशीन में, there will be problem in the ventilation or the oxygen delivery, and therefore the patient's safety can be at stake. So therefore the proper functioning of the anesthesia machine, for an anesthesiologist to understand how this anesthesia machine work, is very, very, very important. Okay. So, coming to the history part, the first anesthesia machine was made by Edmund Gaskin Boyle. Okay, this is very important from NEET point of view कि anesthesia की सबसे पहली machine, it was the Boyle's machine. Okay, so the first anesthesia machine was made by Edmund Gaskin Boyle in 1917. That is the anesthesia machine. ठीक है. Now you'll be asking ये हम लोगों के लिए NEET के लिए क्यों important है? See, from the anesthesia machine pertaining, जो कि बहुत ही straight forward topic है, इसमें ज़्यादातर हम लोगों को सारी चीज़ें याद ही रखनी है. I'll try to make it as simple and give you the learning tactics which you can learn and remember this machine. मगर इसमें से one liner questions बहुत आते हैं from this point, from this chapter, and therefore it is very scoring. ठीक है, आता है तो आएगा, नहीं आता तो नहीं आएगा. तो इसीलिए this anesthesia machine for the NEET PG is also very, very important. Okay, now अब anesthesia machine, see,
क्या होगा, मैंने बताया था कि एनेस्थीसिया मशीन का काम क्या है, पेशेंट के वेंटिलेशन को, ऑक्सीजन डिलीवर को और इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स को ऐड करके एक प्रॉपर कंसंट्रेशन पे, एक प्रॉपर प्रेशर पे, है ना, सेफ्टी लेवल पे पेशेंट तक पहुंचाना। ठीक है, तो सबसे पहले दो जगह से हमारे पास गैस सप्लाई आ सकते हैं। गैस सप्लाई क्या, ऑक्सीजन का या फिर नाइट्रस का या फिर एयर का, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी हम लोग गैस को यूज कर रहे हैं, मेनली ऑक्सीजन, एयर या नाइट्रस ऑक्साइड, वो पाइपलाइन, गैस सप्लाई पाइपलाइन से आ सकता है या फिर सिलेंडर से आ सकता है। ठीक है, फिर वो आके मशीन में जाएगा। अब इन दोनों का आई टेल यू फर्दर, इन दोनों से जो गैस सप्लाई आ रही है वो बहुत हाई प्रेशर में होती है। ठीक है, वो प्रेशर से हम लोग पेशेंट को नहीं दे सकते हैं गैसेस। देयरफॉर आफ्टर कमिंग इनटू द मशीन it has to reduce the pressure of those gases, and that is very important function of the anesthesia machine. So that is the pressure reduction. ठीक है, then it will flow एंड वेपोराइजर से इसमें क्या आ जाएगा, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट एग्जांपल हैलोथेन, आइसोफ्लुरिन, जो भी हम लोगों ने ऑन किया है वो इस गैस में मिक्स होके इट विल कम आउट एज अ कॉमन गैस आउटलेट। तो अभी हमारे पास क्या क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रस, एयर, ये प्लस इनहेलेशनल एजेंट, इट विल कम इनटू द कॉमन गैस आउटलेट। उससे कहाँ जाएगा, ब्रीदिंग सर्किट में। वो ब्रीदिंग सर्किट किससे अटैच्ड है, थ्रू एयरवे, आइदर ईटीटी और सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइस, या जो भी एयरवे हम लोग यूज कर रहे हैं उससे इट विल गो टू द पेशेंट. Okay, so you saw from the gas supply, which can be either from a pipeline or a cylinder, which is at a very high pressure. ये एनेस्थीसिया मशीन क्या कर रही है, जैसे ही इसके अंदर आता है उसका जो ये प्रेशर है वो कम होता है, उसको सेफ्टी लेवल पे लेकर आता है, उसका कंसंट्रेशन अकॉर्डिंगली, ये कंसंट्रेशन अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट उसको वो करती है, और फिर इनहेलेशनल एजेंट्स के साथ मिलके इट कम्स आउट ऑफ द गैस आउटलेट एंड देन ओनली इट इज डिलीवर्ड टू द पेशेंट. तो ये एनेस्थीसिया मशीन का प्रॉपर फंक्शन होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं पे भी अगर माल फंक्शनिंग होगा तो हो सकता है कि ऑक्सीजन पेशेंट को कम पहुंच रहा हो और नाइट्रस ऑक्साइड ज़्यादा पहुंच रहा हो, दैट कैन कॉज हाइपोक्सिया, या फिर द अमाउंट ऑफ इनहेलेशनल एजेंट जितना हमें चाहिए था उतना नहीं पहुंच रहा है, उससे कम पहुंच रहा है, या फिर उससे ज़्यादा पहुंच रहा है. अगर कम पहुंच रहा है तो पेशेंट इज नॉट एनेस्थेटाइज्ड प्रॉपर्ली. ठीक है, अगर ज़्यादा पहुंच रहा है तो देयर कैन बी टॉक्सिसिटी. देयरफॉर टू वर्क the anesthesia machine properly is very important for the patient safety point of view. Okay, so the anesthesia machine, what does it have? It receives the medical gases from a gas supply. This gas supply can be from a pipeline, it can be from a pipeline or it can be from a cylinder. ठीक है, फिर सेकेंड क्या होगा, इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है, इट कंट्रोल्स द फ्लो एंड रिड्यूसेस द प्रेशर ऑफ द डिजायर्ड गैसेस टू द सेफ लेवल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, देन it will also vaporizes the volatile anesthetics like halothane, isoflurane and isoflurane into the final gas mixture, and finally it will deliver the gases to the breathing circuit connecting to the patient's airway. So this is a very simplified version of how a anesthesia machine works. Okay, I hope this is clear. Now as I told, ये जो gases होती हैं which are supplied either from a cylinder, ठीक है, या तो सिलेंडर से जो एनेस्थेटिक सिलेंडर्स होते हैं, या फिर पाइपलाइन से, they are under tremendous pressure for the convenience. क्यों? For the convenience of the storage and transport of that particular gas. ठीक है, now this anesthesia machine will receive the medical gas from a
gas supply, and it will control the flow of desired gas by reducing their pressure so as to a safe level. Okay, so the pressure inside the source, that is cylinder or a pipeline, must be brought to a certain level before it can be used for the purpose of ventilation. So this is the same thing that I told you in the previous slide कि जो gases हैं जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रस है, एयर है, इसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन का प्रेशर इन द सिलेंडर इज अराउंड 2200 psi. अब उतने प्रेशर से हम लोग ऑक्सीजन को पेशेंट को सप्लाई नहीं कर सकते हैं. सो व्हाट डज दिस एनेस्थीसिया मशीन डू इज कि पहले वो इस सिलेंडर से मेडिकल गैस से गैसेस को ले लेगा सिलेंडर से, फिर उसको उस गैस को के प्रेशर को रिड्यूस करेगा कितने पे, सेफ लेवल पे, एंड देन ओनली इट इज गिवन टू द पेशेंट फॉर द पर्पस ऑफ वेंटिलेशन. ओके, सो this I told you, this is achieved by bringing down the pressure of a gas in a graded manner. ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही बार में. इट हैज सर्टेन लेवल्स, प्रेशर 1 वॉल्व, सेकेंड लेवल पे, थर्ड लेवल पे, दैट आई विल टेल यू विद द हेल्प ऑफ 3 pressure reducing zones. Okay, so this is achieved by bringing down the pressure of a gas supply in a graded manner with the help of 3 pressure reducing zones, and therefore because it is at a high pressure and then have to bring it to a pressure that can be supplied to the patient, and this is divided into the machine part, the pneumatic part, the gaseous part of the machine can be divided into either a high or intermediate or a low pressure system. ठीक है, तो एनेस्थीसिया मशीन को हम लोगों ने 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू द प्रेशर. ठीक है, ऑफ द न्यूमेटिक पार्ट, उसमें हाई प्रेशर से इंटरमीडिएट प्रेशर, फिर लो प्रेशर, एंड देन फाइनली इट इज गिवन टू द पेशेंट. तो हाई प्रेशर सिस्टम में क्या क्या आता है? हाई प्रेशर सिस्टम में फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन है 2200, इसमें हाई प्रेशर में मैं एग्जांपल देती हूँ, लाइक सिलेंडर्स है. ठीक है, तो इसमें एग्जांपल ऑक्सीजन सिलेंडर है. ठीक है, उसका जो प्रेशर है दैट इज अराउंड 2200 psi, और ये मशीन से पास होने के बाद इसका प्रेशर हो जाएगा अराउंड 45 to 55 psi. Can you see from 2200 psi ये 45 to 55 psi तक आ गया है. So that is the main function of the anesthesia machine. इसके बाद वो इंटरमीडिएट से भी फिर लो प्रेशर सिस्टम से इसका प्रेशर और कम हो जाएगा, एंड देन ओनली इट विल बी डिलीवर्ड टू द पेशेंट. ओके, इंटरमीडिएट में अपना मेन एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो गैस पाइपलाइन से आता है. ठीक है, नाउ द हाई प्रेशर, टुडे आई विल बी डिस्कसिंग ओनली अबाउट द हाई प्रेशर सर्किट. Okay, high pressure circuit में what are the components of the high pressure circuit? These are the cylinder, the various anesthetic cylinders, example oxygen cylinder, nitrous oxide cylinder, कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर, एयर सिलेंडर, जो अलग अलग सिलेंडर्स होते हैं, वन ऑफ दोज. दूसरा एक योक असेंबली. व्हाट इज योक असेंबली, व्हाट इज द यूज ऑफ द योक असेंबली, आई विल टेल यू. एंड इस पे ही फर्स्ट प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व होता है, दैट इज वो हाई प्रेशर से जो लो प्रेशर मैंने बताया 45 to 55, वो इसी फर्स्ट प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व में होता है. तो बेसिकली यू हैव टू रिमेंबर, जो क्वेश्चन आता है दैट इज द सिलेंडर, it is a part of the high pressure circuit in the anesthesia machine. Okay, now coming to the cylinders per se, for the NEET point of view, for the pre-PG point of view, what is important in cylinders ka, only that much I am discussing, that is what are the anesthesia cylinders made up of. Okay, what is the color coding,
बहुत बार पूछते हैं द ऑक्सीजन सिलेंडर, उसकी कलर कोडिंग, उसके ऊपर एमसीक्यू आ जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड की कलर कोडिंग. सो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग कि ये जो पार्ट है एनेस्थीसिया मशीन का जो पार्ट है, इट इज लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड बट देन यू हैव टू मग इट अप. Okay, so I'll be just telling you some of the tactics कि जिससे आपको ये टॉपिक याद रहे, and mostly one liner questions इससे आएंगे, so that it's like win-win situation. So it is made up of what is the color coding, how much is the pressure, and what is the safety system. This is also very important. Every time in an anesthesia machine at different levels there is the safety system which is present. ओके, सो दैट पेशेंट की सेफ्टी को कुछ भी वो प्रॉब्लमेटिक नहीं होना चाहिए. द पेशेंट सेफ्टी शुड नॉट बी हैम्पर्ड इन एनी वे. ठीक है, सो इन द मशीन ओनली देयर आर वेरियस सेफ्टी सिस्टम्स विच आर प्रेजेंट, सो दैट मैनुअली जो गलती होने के चांसेस हैं या फिर और कुछ, तो उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकें. Okay, so first of all, what are they made up of? The first question, anesthesia cylinders किससे बने होते हैं? इस molybdenum से. ठीक है, so anesthesia cylinders molybdenum से बने रहते हैं. मगर अगर उसमें आया क्वेश्चन आया कि द पेशेंट हैज टू बी टेकन इन द MRI एंड द पेशेंट इज ऑन वेंटिलेशन, ओके, उसमें कौन सा सिलेंडर? सो उसमें मोलिब्डेनम को नहीं लेके जा सकते. द MRI compatible anesthesia cylinders are made up of aluminium. Okay, so the anesthesia cylinders are made up of molybdenum, but the MRI compatible anesthesia cylinders are made up of aluminium. This is very important, and to make them a lightweight. Okay, so they are the chromium is added. So basically the anesthesia cylinders are chromo molybdenum material से बने रहते, that is chromium plus molybdenum. But अगर क्वेश्चन आए कि MRI suite में हम लोगों को यूज करना है और the patient is posted for MRI and he is on ventilation, which like the cylinder, what type of material it is made up of. Okay, so MRI compatible cylinders are made up of aluminium. This is also very important. Are you getting my point? I hope till now it is clear. ठीक है, now the size of the cylinders, इस पे भी आते हैं. What is the size of the cylinder? See, from A to E याद, from A to H याद रखना. ठीक है, A सबसे छोटा होता है, H सबसे बड़ा होता है. A to H type, A smallest, H is the largest. Important क्या पूछेंगे? What is the most commonly used in anesthesia machine? Which type of cylinder? So that is the type E. anesthesia cylinder which is used in the anesthesia machine. तो जो हम लोग अपने OT में देखते हैं, anesthesia machine के पीछे जो cylinders लगे हुए होते हैं वो ज़्यादातर type E के होते हैं. ठीक है, कभी भी OT में जाके देखना, एनेस्थीसिया मशीन के पीछे वहाँ पे सिलेंडर्स लगे हुए होंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर, नाइट्रस सिलेंडर या एयर के सिलेंडर्स, और उसको देखना उसका जो साइज होता है वो टाइप ई टाइप्स ऑफ सिलेंडर होते हैं विच इज यूज इन द एनेस्थीसिया मशीन. ठीक है, टू रिमेम्बर दिस टॉपिक बेटर, ठीक है, एंड टू अंडरस्टैंड इट, आई वुड एडवाइज कि द पीपल हु आर इन इंटर्नशिप और इन MBBS, या फिर if any by chance you get a chance to go to OT and see the anesthesia machine, just look it once so that you will be able to understand what I am saying. ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा इसीलिए डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज वी हैवंट सीन दीज थिंग्स एंड देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू रिमेम्बर. तो एक बार अगर देख लोगे एंड देन यू विल कोरिलेट इट विद दिस लेक्चर, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली. तो जैसे ही मशीन को देखोगे, हाँ ये मशीन है, पीछे जाओगे उधर सिलेंडर्स हर समय लगे रहेंगे. ठीक है, तो सिलेंडर्स को कैसे याद रखना? सिलेंडर्स हाई प्रेशर में आता है.
ठीक है, हाई प्रेशर में आता है, उसमें और क्या याद रखना है, किससे बना हुआ है, दूसरा क्वेश्चन मोलिब्डेनम से। ठीक है, अगर इसी को मेरे को एमआरआई में लेके जाना है तो एल्यूमिनियम से। तो ऐसे एक बार रिवाइज हो जाएगा ना, तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड रिटेन दिस टॉपिक। ठीक है, अगर ये एनेस्थीसिया मशीन के पीछे लगा हुआ है तो ज्यादातर ये कौन सा टाइप हुआ, टाइप ई। ठीक है, नाउ color coding and pressures for the different anesthesia cylinders। से ये जो color coding है ये one of the safety system भी है for the cylinders। जैसे इन कलर मतलब ये अगर मैंने दूर से बस ये एनेस्थीसिया सिलेंडर देख लिया, आई शुड बी एबल टू टेल कि ये किसका सिलेंडर है, विच गैस सिलेंडर इट इज। सो ये कलर कोडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एंड इफ लाइक someone is entering into the OT or any place where these cylinders are used, so from far off only you'll be able to tell कि ये इस गैस का सिलेंडर है। So friends tell me ये किसका सिलेंडर है। सी द सिलेंडर में दो पार्ट्स होते हैं, एक ये शोल्डर होता है और ये बॉडी होता है। सो दिस इज अ शोल्डर एंड बॉडी। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द कलर ऑफ द शोल्डर एंड द बॉडी इसको हम लोग कलर कोडिंग करते हैं। ठीक है, तो शोल्डर का कलर क्या है, बॉडी का कलर क्या है। सो इसमें क्या है, व्हाइट विथ ब्लैक बॉडी। ठीक है, व्हाइट विथ ब्लैक बॉडी। तो ये किसका सिलेंडर हुआ, व्हाइट विथ ब्लैक बॉडी किसका सिलेंडर हुआ। अगर आप ओटी में गए होगे आपने देखा होगा एनेस्थीसिया मशीन के पीछे ये लगा हुआ रहता है, इनफैक्ट ज्यादातर दो दो लगे हुए रहते हैं। व्हाइट शोल्डर विद ब्लैक बॉडी किसका सिलेंडर है, इट इज एन ऑक्सीजन सिलेंडर। अब इसको मैंने कैसे याद रखा था, ऐसे याद रखा था, ये किसके जैसे दिख रहा है, जज और लॉयर। जो पुराने जमाने के जज या लॉयर्स होते थे वो क्या पहनते थे, व्हाइट कलर की विग पहनते थे, व्हाइट कलर की विग पहनते थे। और उनका जो ड्रेस होता था, जो कोट होता था, द कोट वॉज ऑफ ब्लैक कलर। तो ऑक्सीजन को किससे याद रखोगे, ऑक्सीजन का मतलब है जज। तो अपने आप याद आ जाएगा, उनका हेयर क्या होता था, व्हाइट, और नीचे क्या होता था, ब्लैक। तो ऑक्सीजन व्हाइट शोल्डर विद ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर इज व्हाइट शोल्डर विथ ब्लैक बॉडी। इसका प्रेशर क्या होता है, ठीक है, इसका प्रेशर होता है 2200 psi। ओके, नाउ ये कौन सा सिलेंडर है, पूरा ब्लू, द शोल्डर एंड द बॉडी बोथ ऑफ देम आर ब्लू, इट इज ब्लू इन कलर। ये किसका होता है, कैन एनीवन टेल मी। This is for the nitrous oxide. The nitrous oxide cylinder, it is full blue in color. अब इसको कैसे याद रखोगे, सी ऑक्सीजन सिलेंडर को हमने कैसे याद रखा, जज के हिसाब से। ठीक है, जज के हिसाब से। नाइट्रस ऑक्साइड को कैसे याद रखोगे, नाइट्रस। ठीक है, ये है ब्लू। ब्लू को हिंदी में और क्या बोलते हैं, ब्लू को हिंदी में क्या बोलते हैं, नीला। ठीक है, तो इसका N से आ गया N2O। These are just the tactics I am telling. अगर आपको किसी और तरीके से याद रहते तो you can easily remember it that way. I'm just telling how I remembered. Blue से हिंदी में क्या हो गया, नीला, नीला का N से हो गया नाइट्रस, ये। So nitrous oxide. So it is full blue in color. Okay, और इसका प्रेशर कितना होता है, 750 psi। ऑक्सीजन जज, नाइट्रस ऑक्साइड ब्लू, ब्लू नीला, एंड देयरफॉर नाइट्रस ऑक्साइड। अब ये किसका है, इसका देखो, ये जो शोल्डर है, व्हाट कलर इट इज, इट हैज ब्लैक प्लस व्हाइट। ब्लैक और व्हाइट है कि नहीं, और इसका बॉडी कौन सा है, ग्रे कलर का। तो ये किसका सिलेंडर होगा जिसमें वैरायटी ऑफ कलर्स प्रेजेंट हैं, हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट शोल्डर विथ ग्रे बॉडी, कौन सा है, सी इट इज द एयर।
एयर को ऐसे याद रख सकते हो, एयर में भी मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है, इसमें भी मिक्सचर ऑफ कलर्स हैं। ओके, सो इसमें शोल्डर क्या है, ब्लैक एंड वाइट शोल्डर एंड बॉडी इज ग्रे। एयर का जो प्रेशर है दैट इज ऑलमोस्ट सेम एज ऑक्सीजन, दैट इज 2000 psi। ओके, सो ऑक्सीजन जज, नाइट्रस ऑक्साइड क्या था, नीला, ठीक है, ब्लू, और एयर से क्या, मिक्सचर। मिक्सचर किस किस का होता है, ऑक्सीजन का, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, मेल। तो फिर उसमें क्या क्या हुआ बताओ, ऑक्सीजन और ये, तो ग्रे बॉडी विद ब्लैक एंड व्हाइट शोल्डर, ठीक है। नाउ ये किसका है, फुल ग्रे, फुल ग्रे, इवन द शोल्डर्स एंड द बॉडी इट इज ग्रे इन कलर। तो अभी लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज में देखा है एक रखा हुआ ऐसे सिलेंडर्स, हाँ, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है इट इज ग्रे। अब इसको कैसे याद रखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सी, ग्रे को मैं कैसे लिख सकती हूँ, जी, है ना, जी को कैसे, ये सी आ रहा है, इसमें बस एक ये डंडा लगा दिया है। सो कार्बन डाइऑक्साइड का कौन सा कलर है, ग्रे, ठीक है। द प्रेशर इट इज 750 psi, okay, almost same as that of nitrous oxide। okay, now full orange, full orange color, this is the cylinder of cyclopropane। इसको भी याद रखना, फुल ऑरेंज इज साइक्लोप्रोपेन। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो मेनली यूज होता है उसको याद रखना ग्रे, साइक्लोप्रोपेन जो है दैट इज ऑरेंज इन कलर। ओके, नाउ ये कौन सा है, इसमें ब्लू बॉडी है, द ब्लू बॉडी इज देयर, मगर जो शोल्डर है, शोल्डर इज वाइट प्लस ब्लू। अब बताओ ब्लू बॉडी, सिर्फ ब्लू बॉडी किस में हो रही थी, नाइट्रस में, ठीक है, व्हाइट शोल्डर किस में हो रहा था, ऑक्सीजन में, है ना। तो दिस इज अ सिलेंडर ऑफ एंटोनॉक्स, ठीक है। व्हाट इज एंटोनॉक्स, इंपॉर्टेंट, 50% ऑक्सीजन एंड 50% नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, तो इसका शोल्डर क्या होता है, व्हाइट एंड ब्लू, एंड बॉडी इज ब्लू एंड प्रेशर इज 200 psi। सो फ्रेंड्स, अब बताओ जल्दी जल्दी, ऑक्सीजन को कैसे याद रखोगे, ऑक्सीजन के सिलेंडर को कैसे याद रखोगे, जज। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन जज, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाइट कलर के विग और नीचे ब्लैक कलर का कोट, इसका मतलब व्हाइट शोल्डर विद ब्लैक बॉडी। नाइट्रस ऑक्साइड कौन सा कलर था, नाइट्रस कैसे याद रखा था अपन ने, ब्लू, ब्लू को हिंदी में क्या बोलते हैं, नीला, तो ये नीला का मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो दिस इज फुल बॉडी, फुल शोल्डर प्लस बॉडी, क्या है इसमें, शोल्डर प्लस बॉडी ब्लू, इसका मतलब ये नाइट्रस ऑक्साइड है। अगर मेरा शोल्डर वाइट प्लस ब्लू है और बॉडी सिर्फ ब्लू है, तो ये कौन सा सिलेंडर हुआ, दिस इज एंटोनॉक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा कलर, सी, सी में एक डंडा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, जी, तो किस कलर का हो गया, ग्रे, ठीक है। एयर, एयर में क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना। तो जो शोल्डर है वो किस कलर का है, ब्लैक प्लस वाइट, बॉडी किस कलर की है, ग्रे। लास्ट ऑरेंज कलर का कौन सा सिलेंडर है, ऑरेंज कौन सा सिलेंडर है, साइक्लोप्रोपेन।
ठीक है। तो ऑक्सीजन को जज से, नाइट्रस को ब्लू नीला, कार्बन डाइऑक्साइड जी। आई होप याद रहेगा, ठीक है। नाउ अब जितने भी ये कंपोनेंट्स है, जितने भी ये गैसेस ये जो हैं सिलेंडर में, दे आर इन द गैशियस फॉर्म इन द सिलेंडर्स, ठीक है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, एयर है, ये सारे के सारे गैशियस फॉर्म में होता है। मगर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, साइक्लोप्रोपेन ये लिक्विड फॉर्म में होता है। इसको याद रखना, ये नीट में पूछा जाता है। ऑल द गैसेस आर प्रेजेंट इन द गैशियस फॉर्म एक्सेप्ट द कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो इससे ये भी याद रख सकते हो, देखो जो गैशियस फॉर्म में था, ऑक्सीजन था, एयर था, उसका प्रेशर कितना था, ऑक्सीजन और एयर का प्रेशर कितना था, अराउंड 2000 psi। जो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस का प्रेशर कितना था, 750 अराउंड psi, 750 to 760। साइक्लोप्रोपेन का सिर्फ 75 psi, ठीक है। नाउ अब the elements which are stored in the gaseous form, there is proportionate fall in pressure with usage। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, सी अगर मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर को लिया, ठीक है। बाय द वे फ्रेंड्स, the pressure which is present in the oxygen in the cylinders or the pressure which is coming from the pipelines, इसके लिए एक गेज प्रेजेंट होते हैं जो हमें प्रेशर एनेस्थीसिया मशीन पे दिखाते रहते हैं, ठीक है। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि उससे हमें पता रहता है कि जो सप्लाई ऑफ द गैसेस आ रहा है वो सिलेंडर से आ रहा है या फिर पाइपलाइन से आ रहा है, या फिर वो ये भी बताएगा अगर सिलेंडर से आ रहा है तो सिलेंडर खाली तो नहीं हुआ है। एंड देयरफॉर ये जो पॉइंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर अगर फुल है तो उसका क्या हुआ, 2000 psi, ठीक है, वो मैंने पढ़ा। अब इस सेंटेंस पे जाते हैं, क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट्स विच आर स्टोर्ड इन द गैशियस फॉर्म, ओके, देयर इज प्रोपोर्शनेट फॉल इन प्रेशर विद यूसेज। मतलब जितना ज्यादा यूज हुआ उतना ही प्रेशर उस सिलेंडर में कम होता जाएगा। मतलब अगर मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर हाफ हो गया तो उसका प्रेशर 1000 psi गिर जाएगा। और जो मैंने आपको बताया था प्रेशर शोइंग गेज होता है, उससे हमको पता चल जाएगा कि हाँ ऑक्सीजन सिलेंडर हाफ यूज हो चुका है, इट्स टाइम कि हम लोगों को चेंज करना पड़े। बट ये जो लिक्विड फॉर्म्स होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या होता है कि जब तक ये 90% खत्म नहीं हो जाते, टिल दैट टाइम देयर इज नो प्रेशर फॉल, ओके। तो इसको डिटरमाइन करना कि सिलेंडर फुल है या फिर खत्म होने वाला है, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, okay। So whereas elements which are stored in the liquid form, no pressure drop until 9/10 of the liquid in cylinder gets exhausted। Example, nitrous oxide अगर full है तभी भी उसमें 760 psi दिखाएगा, nitrous oxide अगर हाफ है तभी भी 760 psi दिखाएगा। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी कभी like we are in the remote areas, तो एंड द सिलेंडर्स आर नॉट अवेलेबल, और एकदम से नाइट्रस खत्म हो गया या कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो गया, देन दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर अस। तो इसलिए टू नो दिस कि गैशियस फॉर्म है, ऑक्सीजन फुल है तो 2000 है, जैसे 1000 psi आया है इसका मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर हाफ हो गया, ओके। नाउ दिस वॉज अबाउट सिलेंडर्स। तो सिलेंडर्स में हमने क्या पढ़ा, सिलेंडर्स में भी स्टडीड कि व्हाट इट इज मेड अप ऑफ, व्हाट इज द कलर कोडिंग ऑफ द सिलेंडर, एंड देन गैशियस फॉर्म में कौन सा होता है और लिक्विड फॉर्म में कौन सा होता है। अब दूसरा मैंने बताया था हाई प्रेशर सिस्टम में क्या होता है, दैट इज द हैंगर योक असेंबली। अब ये हैंगर योक असेंबली होता क्या है, ठीक है, व्हाट इट इज नथिंग। अब ये सिलेंडर तो अलग से है, ठीक है, तो द प्लेस basically the place where the cylinder is attached with the anesthesia machine, that
area is known as the hanger yoke assembly. ठीक है, तो ये जैसे सिलेंडर है, ये इसमें ये सिलेंडर है और ये एनेस्थीसिया मशीन है, तो यहाँ पे जहाँ पे ये अटैच हो रहा है, द सिलेंडर इट इज गेटिंग अटैच्ड विद द एनेस्थीसिया मशीन, दैट इज नोन एज द हैंगर योक असेंबली. ठीक है, तो असेंबली है तो इट विल बी हैविंग सर्टेन कंपोनेंट. सी दिस इज द सिलेंडर, ये है गैस सिलेंडर. ओके, दिस इज द गैस सिलेंडर. इसके ऊपर जो होता है एक दूसरा होता है, दैट इज द वॉल्व, दैट इज द सिलेंडर वॉल्व. ठीक है, दिस सिलेंडर वॉल्व इज द वन थ्रू विच द सिलेंडर इज अटैच्ड टू द एनेस्थीसिया मशीन. ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, सेफ्टी सिस्टम होगा. कोई सा भी सिलेंडर कहीं पे एनेस्थीसिया मशीन पे नहीं लग जाएगा, क्योंकि अगर मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया नाइट्रस की जगह, और मैं तो सोच रही हूँ कि मैं नाइट्रस चला रही हूँ और पेशेंट को जा रहा है ऑक्सीजन. ठीक है, मगर उससे ज्यादा हैजार्डस क्या है कि मैंने नाइट्रस की जगह ऑक्सीजन की जगह नाइट्रस लगा दिया. मैं सोचू कि मैं तो पेशेंट को ऑक्सीजन दे रही हूँ मगर जहाँ नाइट्रस रहे. तो उन चीजों को बचाने के लिए देयर इज अ सेफ्टी सिस्टम दैट the certain cylinder will get attached to a certain point only, and that is a safety system. तो उसमें से एक hanger yoke assembly में एक safety system आता है which you would have heard, that is the pin index. Before coming to that pin index, I'll just tell you कि ये cylinder है, उसके ऊपर ये valve है, this is the cylinder valve. इसके अंदर क्या होता है, एक ये पोर्ट होता है जहां से मेरे गैसेस आ रहे हैं. जैसे सिलेंडर अगर ऑक्सीजन का है तो यहाँ से ऑक्सीजन आएगा. टू मेक श्योर कि ऑक्सीजन सिलेंडर सही जगह पे लगा हुआ है, इसके नीचे ये दो और होल्स होते हैं. ठीक है, ये दो और होल्स होते हैं विच इज द पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम. ये जो दो होल्स हैं, ये यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया पे ही जाके अटैच होंगे. ठीक है, एंड दैट विल बी द safety system from our side. So what does this do? ये जो hanger yoke assembly करता है, it orients and support the cylinder. ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ टाइट गैस सील. ये यहाँ पे जैसे ये वॉशर है, ये एक सील प्रोड्यूस करता है, दैट इज द बोडॉक्स सील. जैसे जो यहाँ से ये गैस आ रही है, ये ओटी में नहीं फैलनी चाहिए, इन्वायरमेंट में नहीं फैलनी चाहिए, इट शुड जस्ट गो इनटू द एनेस्थीसिया मशीन. एंड देयरफॉर ये हैंगर योक क्या कर रहा है, इट इज प्रोवाइडिंग अ गैस टाइट सील एंड इट एंश्योर्स अ यूनिडायरेक्शनल गैस फ्लो. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि सिलेंडर से ही बस एनेस्थीसिया मशीन में जाए एंड नॉट वाइस वर्सा. एनेस्थीसिया मशीन से गलती से भी वापस से सिलेंडर में नहीं आना चाहिए. इट शुड ऑलवेज बी फ्रॉम द सिलेंडर इनटू द एनेस्थीसिया मशीन, एंड दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द हैंगर योक असेंबली. तो हैंगर योक असेंबली क्या कर रहा है, ये मशीन को एक सपोर्ट दे रहा है. ठीक है, एंड इट इज प्रोवाइडिंग द गैस टाइट सील. ये एक टाइट सील कर रहा है एंड इट इज इंश्योरिंग कि सिर्फ यूनिडायरेक्शनल गैस फ्लो हो. ओके, नाउ ये जो हैंगर योक असेंबली, ये मैंने एक डायग्राम में हैंगर योक असेंबली एक डायग्राम में बताया है कि क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं एंड हाउ द सिलेंडर इज अटैच्ड to this hanger yoke assembly. Now see, एक तो इसमें क्या हो गया, बॉडी हो गई. तो ये पूरा जो ये फर्स्ट पॉइंट है, ये पूरा एक इसकी बॉडी है. ठीक है, एक रिटेनिंग स्क्रू होगा जिससे हम सिलेंडर को टाइट करेंगे. इट टाइटन्स द सिलेंडर इन द योक. ठीक है, निप्पल ये जो है, ठीक है, इधर एक वॉशर भी लगा हुआ है विच इज प्रोवाइड. वो क्या हुआ, एंट्रेंस ऑफ गैस इनटू द मशीन. हमें क्या याद रखना है, ये इंडेक्स पिंस, ये इस निपल के नीचे ये इंडेक्स पिंस हैं. ठीक है, ये इंडेक्स पिंस क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द एक्सीडेंटल प्लेसमेंट ऑफ इनकरेक्ट सिलेंडर. मतलब ऑक्सीजन का सिलेंडर
इधर अगर ऑक्सीजन का सिलेंडर लगना है तो यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन का सिलेंडर ही लगेगा, यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर नहीं लग सकता. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द पिन इंडेक्स, इट इज द सेफ्टी सिस्टम ऑफ द सिलेंडर विद द हैंगर योक असेंबली विच प्रिवेंट्स द एक्सीडेंटल प्लेसमेंट ऑफ इनकरेक्ट सिलेंडर. अब आप सोचो, गलती से ऑक्सीजन की जगह नाइट्रस ऑक्साइड लगा दिया मैंने सिलेंडर, तो कितना बड़ा पेशेंट के लिए डिजास्टर हो जाएगा. ओके, आई एम थिंकिंग दैट आई एम गिविंग आई एम गिविंग ऑक्सीजन, बट एक्चुअली आई एम गिविंग nitrous oxide to the patient. So to prevent this, there is a safety system which is the इंडेक्स पिन्स, प्रिवेंट द एक्सीडेंटल प्लेसमेंट ऑफ इनकरेक्ट सिलेंडर. ठीक है. वॉशर, बोडॉक्सील, फिल्टर के कुछ पार्टिकुलर मैटर, कुछ गंदगी हो उसको हटा दे. एंड चेक वाल्व असेंबली, इट विल प्रिवेंट द रेट्रोग्रेड, इट विल allow only the unidirectional flow of the gas. ओके, तो वापस से वही वाला फीचर मैंने बताया. ये ऑक्सीजन के ये सिलेंडर के ऊपर क्या है, वॉल्व है. ये क्या था, जहां से अगर ये ऑक्सीजन सिलेंडर है तो ऑक्सीजन बाहर आ रहा है. ये क्या है, दो पिन्स हैं. नाउ what is this pin index safety system? अभी बताया था, it prevents the incorrect attachment of the cylinder to the anesthesia machine. So in order to prevent wrong entry of gases into the anesthesia machine from the cylinders, there is a safety system which is known as the pin index safety system. क्या होता है इसमें? See, it consists of holes on the cylinder. तो ये सिलेंडर है, ये होल्स हैं. ठीक है. इसको अगर मैंने वॉल्व को हटा दिया तो क्या देखूंगी, यहाँ पे ये ऐसे एक आर्क में 6 होल हैं और एक ये सेंट्रल होल है. तो ये क्या हो गया? ठीक है. सो इट कंसिस्ट ऑफ होल ऑन द सिलेंडर, वॉल्व पोजिशन इन एन आर्क बिलो द आउटलेट पोर्ट. ठीक है. तो ये होल्स किस पोजीशन में प्रेजेंट है उसके हिसाब से हम पता होता है कि ये ऑक्सीजन का है या फिर नाइट्रस का है. जैसे इसमें 6 होल है. ठीक है. सेंट्रल होल है. ओके, अगर ये ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा तो उसका जो पिन इंडेक्स है, आई टेल यू, दैट इज 2 and 5. सो ओनली द सेकेंड होल and the 5th hole will be open. Okay, if it is like carbon dioxide का है, ठीक है, तो उसका 2, 6 है अगर, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ सेकेंड वाला होल और सिर्फ 6th वाला होल ओपन रहेगा और सारे बंद रहेंगे. एंड दैट इज द पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम. आई होप दिस इज क्लियर. क्या याद रखना है, पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम क्या है? इट इज अ सेफ्टी सिस्टम विच विल प्रिवेंट द रॉन्ग एंट्री ऑफ गैसेस into the anesthesia machine from the cylinder. तो पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम किसके ऊपर होता है? इट इज प्रेजेंट ऑन द सिलेंडर्स. ठीक है, इट इज द सिलेंडर्स पे होता है. ठीक है. और क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ द क्या बोलते हैं, होल्स ऑन द सिलेंडर इन द आर्क शेप. ठीक है, ये ऐसे. सो now depending upon the holes open, there are various pin index which is very important because it is asked in the exam. तो गैस और उसका पिन इंडेक्स. अब ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन का 2, 5 है, मतलब इसमें से जो आर्क है उसमें 2 और 5 वाला ओपन रहेगा. अब कैसे याद रखेंगे इसको? O2. ठीक है, तो 2 आ रहा है तो इसका मतलब इसमें 2 आएगा पिन इंडेक्स में. ठीक है, तो इसका 2 और 5 है. O2, 2 और 5. नाइट्रस में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने वो हैं एटम्स? 2 इसके नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन, N2O. तो कितना हो गया? 2 और 1 कितना हुआ? 3. तो नाइट्रस का हो गया 3, 5. समझे? ऑक्सीजन में सिर्फ 2, O2 तो 2 और 5. नाइट्रस में 2 + 1, 3 और 5. अब कार्बन डाइऑक्साइड देखो फ्रेंड्स, जहां पे भी C आएगा ना, C उससे एक तो याद रखना 6.
6 हो गए, तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी C है, साइक्लोप्रोपेन में भी 6। तो कार्बन डाइऑक्साइड में ये याद रखना, डिपेंडिंग अपॉन okay, I'll just tell you, depending upon the concentration of the carbon dioxide, if it is less than 7.5%, then उसका पिन इंडेक्स 6 तो आएगा क्योंकि C है, उसका पिन इंडेक्स है 26। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड का है अगर लेस देन 7.5 है तो 26, मोर देन 7.5 है तो 16। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन, अब इसको कैसे याद रखेंगे, 1626 तो कार्बन डाइऑक्साइड ने ले लिया। अब प्रोपेन, प्रोपाइल में कितने कार्बन होते, 3 है ना, तो इसका क्या हो जाएगा 36 तो पहले से ही पता है क्योंकि C है, और प्रोपाइल में कितने होते हैं 3, तो इसलिए 3 6। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ऑक्सीजन O2 25, नाइट्रस में 3, 2 और 1 35, कार्बन डाइऑक्साइड का 26 और 16, साइक्लोप्रोपेन का 6 आ गया 1, और एयर का क्या हुआ 15। ठीक है, तो 15 इज एयर। कैसे याद रखोगे, ए अल्फाबेट सबसे पहले आता है तो एयर का 1। ठीक है, 15 हो गया, 6 तो आ नहीं सकता क्योंकि इसमें C तो है नहीं, तो 15 हो गया एयर। ऑक्सीजन का कैसे रखोगे 5 तो ठीक है, 2। नाइट्रस का कैसे रखोगे 2 + 1 3। ठीक है, एंटोनॉक्स का एकदम अलग होता है, दैट इज 7। ठीक है, तो एंटोनॉक्स इज 7। Okay, so today we have discussed a very important topic of anesthesia machine, the high pressure system. सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि anesthesia machine का काम क्या होता है, that is the gases which are coming from the gas supply, whether be it from the cylinder or the pipeline, उसको एक particular pressure पे convert करना, एट अ सेफ्टी लेवल पे कन्वर्ट करना, उसके अंदर द वेपोराइजर्स से जो इनहेलेशनल एजेंट्स हैं वो ऐड करना, और फिर उसका कॉमन गैस आउटलेट से ब्रीदिंग सिस्टम के थ्रू पेशेंट को देना। ठीक है, फिर ये जो प्रेशर सिस्टम्स है उसके हिसाब से हाई प्रेशर, इंटरमीडिएट और लो। हाई प्रेशर सिस्टम में याद क्या रखना है, सिलेंडर्स और हैंगर योग। सिलेंडर किससे बने होते हैं, कलर कोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और फिर उसके बाद उसका सेफ्टी सिस्टम क्या होता है, दैट इज द पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम। सो आई होप दिस वाज क्लियर, और थोड़े से मैंने टैक्टिक्स बताए हैं जिससे आप लोगों को ये याद रखने में इजी रहे, बिकॉज एवरीथिंग इज आंसर्ड इन नीट एग्जाम्स, नीट और एम्स, be it on the color coding, be it from the pin index which is present in the gaseous form or liquid form, what are the sizes. Most common size is E size, which is used in the anesthesia machine. So that was all for today's class. Tomorrow I'll be discussing the pipeline. तो pipelines में भी color coding आता है, उसमें भी कोई safety index है। ठीक है, and intermediate के जो other components हैं that I'll discuss tomorrow in anesthesia machine class. Okay, so that was all for today. For the Unacademy NEET PG, we have an app, that is a Telegram app. उसमें channel है lifedaily.me और NEET PG. Okay, through this app and channel you'll be able to know about the daily life classes या फिर mock test. You'll be updated about everything, and in this only you can ask your doubts and that would be cleared. And to get a Unacademy subscription, install this Unacademy learning app and then go to for the NEET PG plus subscription. Plus subscription के advantages I told you, daily life classes, you will be able to interact with the educator, mock test and analysis, doubt clearing sessions. So basically it's like you'll be getting the whole environment of a classroom. Okay, and to get the Unacademy subscription, 12 months या फिर 24 months course है, and if you apply my code, that is Apurva Life,
Okay, APOORVA live, you can get 10% discount on the subscription. And on the YouTube we have NEET PG channel, and this subscribe on the YouTube, click the bell icon, like and share. And after this, if you use my referral code, that is Apurva Live, APOORVA live, you can get 10% discount on the next Unacademy subscription. Okay, so I hope today's class was helpful and you remember most of the stuff. It was very important from the exam point of view.